So hello guys, we'll be starting some practice questions, and there are certain rules which if you follow then this exercise would be really helpful for you. The first rule is that you have to read the questions very carefully. I'll explain each and every question, but before that please read the question. Then you have to pause the video, and once you pause the video, try to solve it yourself. Now, if you are able to solve it or you are not able to solve it, just try to think about the solution yourself. Then resume the video and follow each and every step. Follow each step diligently. After each step, make proper notes. Once you make proper notes, that will be helpful when you want to revise this concept. And these notes will be checked tomorrow in class. I'm only talking about serious candidates who are really serious about clearing this exam. We'll be covering each and every topic from the very basic. So even if you have any doubt in any particular topic, I'll be clarifying it right over here. Pause the video, read the question, try to solve it. Fight with the question for at least 5 minutes or at least 2 minutes. Think about the question for at least 2 minutes. You may increase the speed of the video to 2x, but pause the video, think about the question, then jot down your notes, copy the solution. Okay, now we'll be moving forward. Okay, so I'll write down the first question over here. The first question is limit x tends to a under root 3x minus a minus under root of x plus a whole divided by x minus a. Now this is a beautiful question. Direct substitution is not going to work. Why? If I substitute a in this is going to become 3a. 3a minus a will be under root of 2a minus this is going to become a plus a. A plus a will become under root 2a divided by a minus a. Root 2a minus root 2a is 0. A minus a is 0. So this is going to become 0 by 0 form. So direct substitution will give me 0 by 0 form. So I cannot use this. So I'll just remove this thing. Okay. Moving forward, if I'll remove this thing from here, just a second. I have to change some settings, erase entire object. Done. Problem solved. Over here also I'll erase this thing. Yeah. Now direct substitution is not going to help us. Second, what did we study? We studied factorization. Factorization will also not be helpful. Now we'll follow rationalization. Yes, there is under root, so rationalization is going to help me. So next step will be limit x tends to a. Now I'll write down the numerator, that is going to be 3x minus a minus of under root x plus a divided by x minus a. This is my question. Since I'm rationalizing, I'll multiply by root of 3x minus a plus under root x plus a whole divided by the same thing, that is under root 3x minus a plus under root x plus a. Now let's focus at the numerator. These two will be multiplied. The formula is a minus b multiplied with a plus b. That is going to be a square minus b square. So now I am going to get limit x tends to a. This will be 3x minus a square minus b square. B square is x plus a. So I will get x plus a divided by x minus a multiplied with under root of 3x minus a plus under root x plus a. Okay. So minus will be multiplied with x and minus will be multiplied with a. So I'll get minus x minus a. In place of this, I'll get minus x minus a. Now, on solving it further, 3x minus x is going to become 2x. This is going to become 2x. Minus a will become minus 2a. Over here, I have limit x tends to a divided by x minus a. And in the brackets I have 3x minus a plus under root x plus a. Okay, I hope it is clear till here. Now we have to focus. This 2 can be taken outside. 2 bahar lenge, x minus a upon this. X minus a will cancel out x minus a. So I'll be left with limit x tends to a 2 divided by root 3. In place of x substitute a minus a plus under root. In place of x substitute a. So this will become 2 divided by under root of 2a plus under root of 2a.
2 divided by twice of root 2a. 2 cancels out 2. I'll get 1 upon root 2a. So the answer to this solution will be 1 upon root 2a. I hope it was clear. Now let's move forward to the second question. The second question says limit x tends to 0. So this is the question. X tends to 0, sine 2x upon x. Let's recall the formula that we have studied. Limit x tends to 0, sine of x upon x. When x tends to 0, sine x upon x is equal to 1. We also did an example. Limit x tends to 0, sine of 3x upon x. Then I said just write down this 3 outside. This is going to be the answer. So now in this question 2 is going to come outside and the answer will be 2. I hope it was clear. Let's move forward to the next question. Third one. The question says limit x tends to infinity, sine x upon x. Now this is a good question. The domain of sine is -1 to 1. The output cannot go beyond -1 and 1. Let's recall the graph of sine x. This is the graph of sine x. Highest value can be 1 and the lowest value can be -1. If I put anything, pi by 2, 3 pi by 2, 2 pi, 100 pi or anything, the maximum value sine can take is 1. साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1. तो साइन के अंदर मैं कुछ भी डाल दूँ, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट? 1. 1 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा. तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी डालने पे साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1. तो इवन इफ इट बिकम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 1. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आ रहा है x क्या है? इन्फिनिटी. एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज अ बिग नंबर. एनीथिंग अपॉन अ बिग नंबर इज इक्वल टू 0. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0. आई होप इट वॉज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ देखेंगे. फोर्थ क्वेश्चन कहता है ओके, लिमिट x टेंड्स टू -2 x + 2 अपॉन x³ + 8. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी का सवाल आ चुका है क्योंकि मैंने इसका उल्टा पढ़ा रखा है. ये वाली चीज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्लास में. अब हम क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो हमने क्लास में क्या चीज़ पढ़ी है? हमने सिंपल सा पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x - a, और इसका आंसर आता है n a⁻n - 1. वी हैव स्टडीड दिस थिंग. अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में पावर नीचे आ गई, नॉर्मल टर्म ऊपर चला गया, ये तो उल्टा हो गया. कोई बात नहीं, जो आता है वो करो. क्या आता है हमें आता है लिमिट x टेंड्स टू -2 x³ + 8 डिवाइडेड बाय x + 2. हाँ, ये हम कर सकते हैं. अगर ये हम कर सकते हैं तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं. इसे सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू -2, दिस इज x³ माइनस यहाँ लिखा, -8 यहाँ लिखा, डिवाइडेड बाय x यहाँ लिखा, माइनस यहाँ लिखा, -2 यहाँ लिखा. -8 को क्या मैं लिख सकता हूँ? -2 का क्यूब. बिल्कुल. अब ये हो गया x³ माइनस -2 की पावर में 3. फॉर्मूला होता है na⁻n - 1. फॉर्मूला लगाओ. n क्या है? n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 आ गया. a क्या है? a इज़ -2, तो यहाँ -2 लिख दो. पावर में n - 1, 3 - 1 क्या होता है? 2, तो यह आ जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 4 सा 12. तो हमने इसका आंसर निकाल दिया जो कि आ रहा है 12. पर पूछा तो इसका रेसिप्रोकल था. जो हमने निकाला है क्वेश्चन ने उसका रेसिप्रोकल पूछा था, तो इस आंसर का रेसिप्रोकल कर दो. क्या हो जाएगा? 1/12, और वो हमारा आंसर आ जाएगा. जो हमें आता था हमने वो कर दिया. सवाल में उसका रेसिप्रोकल पूछा था तो हमने आंसर का रेसिप्रोकल कर दिया. दैट विल बी द आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर. अगला सवाल हमसे कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 डिवाइडेड बाय 2x² - 7x + 5. सबसे पहले हम ट्राई करते हैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में ये हो जाएगा 1 - 1. 1 - 1 क्या होता है? 0. तो 0 अपॉन
ये हो जाएगा 2 माइनस 7 प्लस 5, ये भी आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है, 0/0 फॉर्म तो हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। फैक्टराइजेशन से शायद से ये सॉल्व हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं यार, शायद फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए। तो ये लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय -7x को स्प्लिट कैसे करते हैं, -2x माइनस 5x, लास्ट में आ गया +5। इन दोनों को अलग से लिखो, इन दोनों को अलग से लिखो, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 अपॉन 2x बाहर लिया, दिस इज x माइनस 1, -5 बाहर लिया, दिस इज x माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 1। इससे ये काट दो। अब x टेंस टू 1 यहाँ पे डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा -1/3। दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 6th। घबराओ मत, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। 6 सवाल देखेंगे आज के लिए। 6 सवाल कहता है हमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4। ये वाला टॉपिक बैच 9 में रह गया था, तो बैच 9 वाले इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, और अगर वेट कर लेंगे तो मैं पूरी चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। अदरवाइज बैच 9 में टुमारो आई विल डू दिस इन क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्लास में तो मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा, अभी चाहो तो वेट कर लो। देखो यार, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब स्प्लिट करो, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 होल पावर x प्लस 4। क्या बात, ये तो सेम आ गया, इसे हटा के 1 लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 होल की पावर में x प्लस 4। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, x क्या है, x जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये हो गया 5 अपॉन इन्फिनिटी। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है वेरी स्मॉल नंबर, तो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस स्मॉल नंबर। जब आता है 1 प्लस स्मॉल नंबर की पावर में इन्फिनिटी, एक्स इज इन्फिनिटी, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वही फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला कहता है e की पावर, ये चीज़ यहाँ लिख दो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करना है, ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी कर दो, 5 अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4। इस चीज़ को यहाँ लिख दो, x प्लस 4। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, एक बार फिर से देखेंगे। हम यहाँ तक पहुँच गए थे सब लोग मिलकर, अब दोबारा से पूरा रास्ता तय करते हैं। क्या बोला गया है हमसे, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस x है इन्फिनिटी, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल नंबर। 1 प्लस स्मॉल नंबर x इन्फिनिटी, तो पावर क्या हो गई, इन्फिनिटी, इसकी पावर इन्फिनिटी हो रहा है, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ टेंडिंग टू 1 की पावर में इन्फिनिटी। समथिंग विच इज़ टेंडिंग टू 1 की पावर अगर इन्फिनिटी होती है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्लास में। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है e टू द पावर, जो ये चीज़ लिमिट लगी है वो यहाँ कॉपी करो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। उसके बाद ये वाली चीज़ को यहाँ पे कॉपी करो, 5 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर ये वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में लेके आओ, उसको क्या हो जाएगा, x प्लस 4। यहाँ तक आई गेस सब लोग आ चुके हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब देखो यार, 5 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ही लिख दो, ठीक है। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो मैंने क्या सिखाया है, इसके कोएफिशिएंट्स को कॉपी कर दो, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 5 इंटू 1/1, तो आंसर इज e की पावर 5। आई गेस ये सिंपल था। अगर किसी को इसमें डाउट होता है, आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास टुमारो अगेन।
क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे अगर इस क्वेश्चन में डाउट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th होगा। 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहाँ गए 7th सवाल, चलो मिल गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स होल अपॉन एक्स। यार साफ दिख रहा है, अंडर रूट आएगा तो क्या रैशनलाइज ही तो करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा कायदे से लिख दूँ। चलो रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखो, तो ये चीज़ हमारे पास ऐसे आ गई। इसी चीज़ से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है, कर दिया डिवाइड। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर क्या होगा a प्लस एक्स, बी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा a माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज x, यहाँ पे आएगा अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। इस टाइप के 2-3 सवाल हम क्लास में वैसे ही कर चुके हैं। अब a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, ये माइनस दोनों पे जाएगा तो इधर आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। a से a कटेगा, x और x जोड़ के क्या बन जाएगा 2x, इस x से ये x कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा लाइट हो गया डार्क लिखता है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। और लिमिट को कैसे भूल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x को ज़रा 0 डाल दो, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन रूट a प्लस रूट a, दैट इज़ 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट a। तो सॉल्व करके आ जाएगा 1 अपॉन रूट a, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट a। आई होप यहाँ तक सबने फॉलो करा। अगला सवाल देखेंगे 8th वाला, 8th क्वेश्चन। चलो देखते हैं 8th सवाल क्या कह रहा है हमसे। इट इज सेइंग लिमिट x टेंड्स टू 2, इधर है मेरे पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। क्या बात, चलो यार सबसे पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ट्राई करते हैं। 2 यहाँ डालो 8, फिर 2 को यहाँ डालो -3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 2 इसमें डलेगा ही नहीं, सीधे लिख दो 4 डिवाइडेड बाय 2 को यहाँ डालो, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 को यहाँ डालो 2 2 ज़ा 4 -8 इंटू 4 प्लस 16। अब देखेंगे क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4, 3 इंटू 4 क्या होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, 8 इंटू 4 क्या होता है 32, तो यहाँ लिख दो 32, 8 प्लस 4 होता है 12, माइनस 12 हो गया 0, 16 प्लस 16 32, माइनस 32 हो गया 0, तो यह आ गया मेरा 0/0 फॉर्म। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन तो नहीं कर सकते, चलो यार फैक्टराइज करते हैं, इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है ना x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 का x इज रफली इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ, यहाँ लिखा था x टेंड्स टू 2, x इज अप्रोचिंग 2, x रफली 2 के बराबर है, 2 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, एक चीज़ आ गई x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जो मेरा न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डिवाइड करने के लिए अब देखो यहाँ पे x क्यूब आ रहा है ना, और यहाँ पे तो x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर। x में अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो x क्यूब आ जाएगा ना, तो मैंने बोला ऐसा करो x में मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, तो x में जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा हमें नीचे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। अब यहाँ पे तो रुकेंगे नहीं हम, अब एक्स स्क्वायर को 2 से भी तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा -2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं, छोड़ थोड़ी ना सकते हैं ऐसे में, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, ये साइन हट जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया कैंसिल,
3x² माइनस में है, ये प्लस में है, तो बचेगा -x² + 4। अब देखो यार, यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे -x² + 4 आ रहा है। तो अब इसमें आगे मैं क्या लेकर आऊँ, यहाँ पर क्या लिख दूँ जो चीज़ x से मल्टीप्लाई होके x² दे दे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए -x। अगर यहाँ पे मेरा -x आ गया तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा -x। अब -x x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, -x²। तो यहाँ पे आ जाएगा -x²। अब यहाँ थोड़ी ना रुक जाएंगे, हम पूरा करेंगे। -x 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, +2x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +2x। ठीक है, +2x को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा +2x। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब x² और x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा -2x + 4। तो यहाँ पे आ रहा है -2x + 4। अब यहाँ पे हमें एक और टर्म लिखना है, तीसरा टर्म पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा टर्म कैसे लिखूँगा, मैंने बोला यहाँ पे क्या लिखूँ जो इससे मल्टीप्लाई होके इसको कैंसिल कर दे। सिंपल सी चीज़ है, इससे लिखते हैं। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -2x आ जाए, -2। तो यहाँ -2 लिख देंगे। -2 को मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो क्या हो जाएगा, -2x। तो यहाँ लिख दो -2x। यहाँ थोड़ी ना रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे। -2 × -2 + 4। तो यहाँ लिख दो +4। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ये रहा। माइनस करना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 2x से 2x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा क्वोशंट क्या आ रहा है, x² - x - 2। तो हमारे पास आंसर आ गया एक चीज़ का, x² - x - 2। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 डिवाइड क्या किया था हमने, x³ - 3x² + 4 डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है, आंसर आ रहा है हमारे पास। व्हाट इज़ द आंसर, x² - x - 2। इस वाले पार्ट को रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे, चाहे तो 2x की स्पीड पे देख लो, पर इसे एक बार दोबारा से देख के खुद ट्राई करो। ओके, मैं एक बार नहीं, आप रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। अगर डाउट होता है, आई विल डिस्कस दिस इन क्लास अगेन। आई होप इट वॉज क्लियर। इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा, कहाँ गया, हाँ, x² - x - 2। अब उसी लॉजिक से जो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है अगला टर्म मेरा, x⁴ - 8x² वाला, x⁴ - 8x² + 16, इसको भी x - 2 से डिवाइड करेंगे। ये आप करके देखोगे, जब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको, इसे डिवाइड मत करो, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है यार। हाँ, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। x⁴ को लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर, और 16 को लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² अलग से आ गया, माइनस यहाँ लिख दिया, 8 को ब्रेक करो 4 × 2, तो यह हो जाएगा 2 × 4 × x²। तो ये हो गया मेरा a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ x² - 4 का होल स्क्वायर। चलो बढ़िया, आ गया मेरे पास x² - 4 का होल स्क्वायर। इसे हटाओ, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, थोड़ी जगह बनाते हैं। हटाओ इसको, हटाओ इसको, इसको साफ करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x - 2 इंटू वॉट, x² - x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर क्या है, x - 2 मल्टीप्लाइड विथ x² - x - 2। ये है a² - b², तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे आ रहा है x - 2 इंटू, इसको फैक्टराइज करो, 2 में ब्रेक होगा, x एंड x मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, 2 एंड 1 -2 है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के स्क्वायर के साथ कट गया। अब एक्स को 2 रख दो, 2 + 1 क्या होता है 3, 2 + 2 होता है 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आंसर आ जाएगा 3/16। दिस वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में डाउट होता है रीवॉच इट, और अगर फिर भी डाउट होता है देन वी विल डिस्कस दिस इन क्लास। डोंट वरी, वी विल डिस्कस दिस इन क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, चलो सिंपल सा एक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा sin ax अपॉन sin bx। इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करके लिखेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा मेरे पास sin ax, डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास sin bx। अब डिवाइड करो x से, मल्टीप्लाई करो x से, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है, जब भी हमें sin ax अपॉन x मिले तो सीधे a को बाहर लिख दो, sin bx अपॉन x मिले सीधे b को बाहर लिख दो, यही हमारा आंसर बन जाएगा a अपॉन b। आई होप यहाँ तक सबने फॉलो किया। अब ये हो गया 9th सवाल। जैसा मैंने वादा किया था सिर्फ 10 सवाल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा करवाऊँगा। क्वेश्चन सेज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन पाई अपॉन x। सिंपल सा लॉजिक है, x यहाँ लिखा है, x को मैं डिनोमिनेटर में लाना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, क्यों है ना, डिनोमिनेटर गोज़ टू द न्यूमरेटर। सिंपल सी बात है। जो हम यहाँ पे लिखते हैं a अपॉन b अपॉन c, ये c ऊपर चला जाता है ना और ये बन जाता है ac अपॉन b। तो मैं c को नीचे लाके a अपॉन b/c भी तो लिख सकता हूँ। तो बस उसी लॉजिक से इस x को हमने नीचे लाके लिख दिया 1 अपॉन x। तो ये हटाओ यहाँ से। अब 1 अपॉन x नीचे आ चुका है हमारे पास, पर अंदर क्या बन रहा है, अंदर है पाई अपॉन x। तो मुझे यहाँ पे भी तो पाई अपॉन x चाहिए, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से ही डिवाइड कर दो। फिर हमारे पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई अपॉन x, बाहर लिखा है पाई, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को साथ में लिखो, पाई अपॉन x। अब देखो यार क्या पढ़ाया है हमने, इफ़ x टेंड्स टू इन्फिनिटी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। अब जब ये दोनों साइन x अपॉन x क्या होता है, दिस इज़ 1 और इनटू पाई हो जाएगा, 1 इंटू पाई इज़ पाई, तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई। आई होप इट वॉज क्लियर। This was the last question. I hope you enjoyed it, and more than enjoyed, I want to know whether you learned from it, if this exercise was helpful or not. If it was helpful, please leave a comment regarding feedback, regarding speed of the class, regarding presentation and the audio as well. Depending upon this, if it was helpful, I would try to improve these sessions. We can solve extra questions because classes are limited. I get classes of 1 hour. By this we can solve more questions, we can practice more, we can practice previous year questions and thereby improve our maths skills. Okay guys, good night. क्या लिख रहा हूँ यार, गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस। सो फाइनली आई विल एंड दिस, बाय।